Hi friends, welcome to my channel. I'm at the small garden in the pond park. I had left my hair in the small garden. I tied up my hair in a bun, in a neat bun, and I've just kept my look like this. So after the hair spa and hair color, मैंने पूरी मेहनत की. यू वोंट बिलीव, मैंने इतना बड़ा रिस्क उठाया विद माई ब्लैक मेहंदी. मैंने थोड़ा दूसरा कलर इंडिका का था वो मिक्स किया, फिर मेरा वो जो जली हुई टी लीव्स का था वो मिक्स किया मैंने, कॉफ़ी फिल्टर कॉफ़ी का वो मिक्स. सो यू इफ़ यू कैन सी दिस लुक, आई टुक अ रिस्क. मैंने बोला ना, एवरी सिंगल डे फॉर मी इज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस एंड स्पेशली विद माई हेयर आई डू अ लॉट ऑफ. उसमें मेरे चांसेस होते हैं कि मुझे कैसा रिज़ल्ट मिले. एंड आई सी दिस फर्स्ट टाइम इट हैज़ कम आउट सो ब्यूटिफुल. और जब मैंने हेयर स्पा भी किया उसमें भी इतने सारे एक्सपेरिमेंट. पहले कंडीशनर लगाया, फिर हेयर ऑयल लगाया, फिर क्या लगाया मैंने, कंडीशनर के साथ मैंने हेयर मसाज किया. नहीं, मसाज नहीं किया, पहले मैंने कंडीशनर लगाया सनसिल्क ब्लैक. एड ऑल्सो बचा हुआ था तो वो. देन आई यूज्ड हेयर कोकोनट हेयर से मैंने अपना हेयर मसाज किया. देन द लास्ट आई यूज़ वाज निविया सीरम. आई शो यू. सो ये इतना करने के बाद मुझे ये वाला ये टेक्सचर मेरे बालों में, बिकॉज दे हैड बिकम सो इन स्पाइट ऑफ डूइंग स्पा, प्रोफेशनल स्पा, had dried. And especially when you're doing such things, can you imagine? And I took a risk. I'm not encouraging that other people should do this. See, I could do this because मेरे बाल मतलब, and I was having massive hair fall all these days. massive. मैं हाथ लगाती हूँ मुझे डर लगता था, मैं बैठ जाती हूँ वहाँ पे, जैसे ऑटम लीव्स की तरफ. my hair is falling. I'm combing my hair. I'm frightened. Either they are becoming, despite of professional spa, I'm not saying that it was bad or something. That was the first step. So all the, maybe the new follicles are coming, hair follicles, and the old and dead ones are dying. ये भी हो सकता है. Okay, so amazing results I got. And as I said, argan body garage का argan hair oil, hair mask, I'll start using that after every application. Of course, I'll use now that I've tried this hair spa, that once a month or whenever I'm doing henna, I should be doing it. So my hair remains maintained. Oiling is a must. Oiling. I'm not conditioning, and I'm not saying conditioning by itself will do any wonders, because उसमें बाल ऐसे हो जाते हैं, फिर वो सिकुड़ जाते हैं after one day. The very reason, if you can see this, is because of that hair oil. So, and as I said, it took me a lot of time. It took me 4 washes. मतलब one, I had to just clear it out. Okay. Then the second one was I dilute my shampoo and I use it. So first, second, third, तब तक वो, जब तक वो बराबर से set नहीं हुआ. You all have seen it. I am describing all this. Okay, all this apart, भाषणबाजी. A very big thank you for a very massive, मैं मेरी तरफ से मैसिव ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोटोज़ को सिर्फ 5 लाइक्स मिलते थे. yesterday when I did my photograph and I clicked, मेरे घर में बैठ के, मतलब उन्होंने अपलोड किया था and posted it, I got 7 likes and I'm like, really? It's because my vibe also changed completely. I hope you understand. So you won't believe when people talk about property matters ना, I can literally relate to it, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है. मैंने कितना मुझे कितना आइसोलेशन मिला है, मुझे कितना ह्यूमिलिएशन मिला है, मुझे कितना I was expelled. I was, फिर I did not run behind it. मैंने ये नहीं सोचा, those last few days were there. I was just telling, I was just telling जो होता है देखा जाएगा. When you have a sense of detachment, अपना कर्म करो. And I had a sense of मैंने बोला, भगवान, how will I manage all these things? चारों तरफ से मेरे दुश्मन हैं, चारों तरफ से एक सपोर्ट नहीं है. एंड ऐसा भी नहीं कि मैं कोर्ट कचहरी में जाके अपना टाइम वेस्ट करूँ और पैसा भी बर्बाद करूँ. उतने पैसे मेरे पास है भी नहीं.
I don't know, some people wonder कि how come I'm managing such an comfortable lifestyle. I'm managing comfortable lifestyle because I have a sense of detachment. When you stop chasing things, things come to you. That's what I realized. So a big thank you for patronizing my channel. Thank you all my subscribers and viewers. मैं बहुत ही मुफट हूँ. ऐसा मत सोचो कि मैं लल्लू चप्पूगिरी करती रहूँगी. But ऐसा, if I'm disagreeing with you on certain thing doesn't mean you'll have to stop watching my content और मुंह बनाना है, मुंह फुलाना है. You can still comment. There are people उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा मस्का लगाऊंगा तो शांति मेरी, ऐसा नहीं है. यू कैन इवन क्रिटिसाइज मी. मुझे कुछ लोग आके क्रिटिसाइज करते हैं. डू आई फील बैड अबाउट इट? मैंने बोला अनलेस एंड अनटिल दे डोंट कॉल और गेट इनटू नेम कॉलिंग, आई एम नॉट बॉदर्ड. मुझे सजेशंस मिलते हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट. ईना, यू नो व्हाट आई लाइक्ड अबाउट ईना, वो सोचती नहीं कि वो कितने सारे कमेंट, दिलदारी से कमेंट्स, मतलब हर जेनरोसिटी व्हेन इट कम, नॉट ओनली जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, इवन हर सजेशंस. उसको कुछ अच्छा या नहीं लगता है तो शी पुट्स इट वेरी नाइसली. कभी कभी मेरा लुक अच्छा नहीं रहता है या कभी मैंने टूटे फूटे बर्तन, इट्स नॉट दैट आई डिडंट नो अबाउट दिस कि मुझे टूटे फूटे बर्तन, लेकिन उस मग से मेरा थोड़ा सा आई वोंट से अटैचमेंट था क्योंकि मैंने वो 30 दिन और 223 में वो 30 दिन तभी मुझे मेंशन भी नहीं किया था. 24 में उन लोग ने मेंशन किया वो सेरेमिक. हाउ मच इज़ इट कॉस्टिंग? $30 मे बी. आई डोंट थिंक इट वॉज मोर देन $30. तो ये किसी चीप प्लेस से लाया था उन लोगों ने. ओनली दैट इट लुक कलरफुल बिकॉज व्हेन आई वेंट टू द डी मार्ट एंड व्हेन आई एक्चुअली चेकड आउट देयर वर सम गुड स्टफ, मतलब गुड क्वालिटी, गुड ये थे. आई होप यू अंडरस्टैंड. और सेरेमिक तो वैसे भी टूट जाता है. मैंने बोला शायद मेरा इनके साथ वो रिश्ता उतना ही था तो 31st को ही टूट गया, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट समथिंग न्यू. सो आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली. मतलब मेरा मोह था उस चीज़ के ऊपर क्योंकि मैंने उसके ऊपर मेहनत की थी लगातार 30 दिन जाके, और इस बार मैं एक दिन मिस आउट किया क्योंकि एक घर में उन लोगों ने 2 दिन थे और दूसरे लास्ट के घर में 4 दिन था. तो कैन यू बिलीव, पहले 23 में हर एक दिन हर एक जगह दूसरे घर में था. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये जो करोड़पति लोग होते हैं ना जो अपने घर में मदर मेरी रखते हैं, लेकिन ये भी खुद इतने लालची और इतने हरामी कपटी ढोंगी रहते हैं. प्रॉपर्टी के जिनके घर में था, मैं व्हेन आई लिसन टू देयर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड ऑल, मेरा तो सर चकरा जाता है. yesterday when I was talking to his brother, मैंने बोला ये तो तेरा भाई तो करोड़पति है एंड उसके मल्टीपल फ्लैट्स है. एंड आई सेड ही इज़ वेरी, मैंने तो आई होप यू अंडरस्टैंड. मैंने बोला जिनके पास बहुत ज़्यादा है वही छीनते रहते हैं. यार तुम लोग गरीब मत बिहेव करो. मतलब यू नो आई एम टेलिंग यू, एंड दैट ब्रदर वाज, मतलब उसको प्रॉपर्टी में, अपने बाप के प्रॉपर्टी में मल्टीपल, उसके डैडी के प्रॉपर्टी में उसको कुछ नहीं मिला क्योंकि द अदर सिबलिंग्स वाज ग्रैबिंग एवरीथिंग. एंड इसका क्या ना, ये मे बी ही इज़ अनएम्प्लॉयड बट ही इज स्टेइंग ऑल्सो इन अ पॉश सोसाइटी. अभी तुम पॉश सोसाइटी में रहते हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड भी वैसे ही मेंटेन्ड होना चाहिए. बट आई थिंक ही इज़ लूजिंग हिज माइंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई सेड बट यू आर मैनेजिंग वेल ना, मोर देन इनफ. यार मेरा घर आके देख, लोग क्या कहते हैं. इफ़ आई वर टू शो यू द क्लटर इन माई लिविंग रूम, वो एक गोडाउन की तरह दिखता है. सो बट स्टिल आई एम लिविंग इन अ फ्लैट वर्थ ऑलमोस्ट $1 crore of rupees. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. मैंने ही ऐसा ये दिखा, मैंने बोला ये रद्दी, ये कबाड़, ये मेरा हिस्से में था ही नहीं. It is when I'm trying, when I was trying to declutter, इस औरत ने मेरा बदनामी किया. I'm selling things. मैंने बोला तेरी कबाड़. And you know मुझे क्या बुरा लगता है, बुरा भी नहीं. I'm like devastated when she used to go around telling lies. You know, she tells me we have to give up on this खाट. तो मैंने बोला yeah, I know this bachelor guy, उसको चाहिए था. Then this boy comes because even वो रेंटल्स पे था but he knew my mom. उसको लल्लू चप्पूगिरी करना था क्योंकि वो मेरे साथ भी
बातें करता था ये लड़का। तो ही कि शांति मैं तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं दूंगा, मैं आंटी को दूंगा। मैंने बोला आंटी की, आंटी का सामान है तो आंटी को ही दे दो। एंड यू नो सी, अब जिसको अफोर्ड कर सकता है, जो 4,000 की चीज़ है ये 2,000 में दे रही, क्यों? बिकॉज द बॉय इज़ क्यूट एंड नाइसली टॉकिंग टू आंटी। आंटी मेंटल। मैंने 3,000, नहीं आंटी मुझे, सो ईजी, नहीं आंटी के हाथ में पैसे, लाइक यू नो शी हैड आस्क्ड मी टू फ्रॉम यू नो लुक अप फॉर द सेल। मैंने उसका सेल करा के दिया, एक इतना बड़ा जैसे एक सिंगल बेड था इन द लिविंग रूम। कैन यू बिलीव दैट? लिविंग रूम में एक सिंगल बेड। तो 2017 की बात कर रही हूँ। शी वेंट अराउंड टेलिंग पीपल आई सोल्ड इट। Can you believe this? So because of her lies and because of her gaslighting, and then she makes me feel bad that you know, oh you're not taking what, you're not helping me out with anything. मैं ही कर रही हूँ, मैं ही अके. So can you imagine, those lies have such a huge impact. It's called a trigger cascade. Like you know, like suppose मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ, अनप्लेजेंट मेमोरीज, तो शी यूज़ टू कीप रिपीटिंग इट. सो अगर लोगों ने मेरा चेहरा अच्छा देखा है, जैसे मैं बोलती थी ना, व्हेन आई हैड गॉन टू गल्फ इन 22 years ago, आई लुक लाइक अ 10th standard चाइल्ड. आई यूज़ टू बी थिन. मेरा चेहरा इतना मासूम रहता था. सो अगर लोग बोलते हैं शांति हाउ कम यू आर लुकिंग यंगर, तो मैंने बोला आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस. मेरा एज रिवर्सल चलता था. मुझे लिटरली लोगों ने पूछा है कि तुम 10th standard करके आ गई हो, तुम 12th करके आ गई हो, और मेरी हरकतें भी इतनी चाइल्डिश ही रहती थी, चेहरा भी इतना मासूम रहता था. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो इफ़ पीपल आर सीइंग, अभी तो थोड़े ग्रे हेयर दिख रहे हैं और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट तभी तो आई वॉज वेरी वेरी लाइक दिस. और दूसरी चीज़ मैंने देखी है कि पीपल डू इट, चाइल्डिश पीपल डू इट टू ट्रिगर यू. और मुझसे, मैं एज ए सेड, मैं आई एम ऑन दैट लेवल दैट आई डोंट रियली केयर. आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन. मैं नहीं समझा सकती हूँ. आए दिन वो मॉकरी, वो रेडिक्यूल, वो बोलते ना, एक्सक्लूड करना, आइसोलेट करना, डिसोशलाइज करना. हाउ डू आई से, आई कांट गेट द राइट इंग्लिश वर्ड. मिनिमाइज करना, ट्रिवियलाइज करना, मतलब तुम्हारे कंट्रीब्यूशन और तुम्हारे प्रेजेंस को मिनिमाइज करना, मतलब तुम हो या ना हो के बराबर. गाइस, आई एम टेलिंग यू, इफ़ आई कैन गो थ्रू ऑल दैट, मैं ओपनली बोलती हूँ एंड कम आउट ऑफ इट, इट्स बिकॉज माई मेंटली आई वॉज ऑलवेज, आई जस्ट मैनेज्ड. में एक तो हटा सावन की घटा मैं केयर नहीं करती थी, तो लोगों को और गांड जलती थी कि हम लोग इसको इतना परेशान करें. मैंने बोला घर के लोग ही इतने हरामी नहीं थे, बट आसपास के वो रिश्तेदार, वो नेबर्स, वो कम्युनिटी के लोग, चर्च के लोग देखने चाहिए थे हरामी कैरेक्टर्स. इनका मुंह फूल जाता है, ये ताने मार रहे हैं, ये पार्टीबाजी कर रहे हैं, फिर जो अनप्लेजेंट चीज़ है वही आके मेरे सामने बातें करेंगे. पहले मुझे समझता नहीं था, बिकॉज आई वॉज सो ट्रॉमा बॉन्डेड. मुझे, मेरा दिमाग ही बैठ गया था. अगर उस थिंग से मैं वापस आई हूँ, इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ, जब तकलीफ़ होती है, नो अमाउंट ऑफ थेरेपी एंड पिल कैन help you unless and until you face those problems. And I've faced it and I've come out of it. Today I'm a fashion icon. Why? Imagine, जो दादाजी चिल्ला के शोर मुंह बनाते थे, आज की तारीख में ही सिंह तुम नहीं आई. आई स्टूड एट द गेट. वो वॉचमैन मुझे खड़े रह के मुझसे बातें करता है एट द गेट. आप मुझे क्या लेके आओगे कल, अपने हाथ से क्या खिलाओगे? मैं कल पक्का कुछ खिलाई है मुझे. मैंने बोला ये तो मेरा ट्विन ब्रदर लगता है. मैं भी ऐसे बोलती, चाय पिलाई है, खाना खिलाई. मेरा पहला, मैं कभी ऐसा खाना खिलाने की बात नहीं करती हूँ. मेरा एक फेवरेट होता है चाय पिलाना, क्योंकि आई एम अ चाय शौकीन. फिर मैं उनको बोलूँगी नहीं मुझे ब्लैक टी चाहिए. आप पिला दीजिए. कौन सी वाली चाय? दूध वाली चाय भी मैं शौक से पीती हूँ, प्रोवाइडेड इट्स डन प्रिटी वेल. या तो मैं खुद ही बोलूँगी मेरे हाथ की चाय पी लो, मैं खुद बनाऊँगी.
नाश्ता बन रहा है। आई विश आई कैन शो यू ऑल द कपल। वो बेंच पे वो कपल बैठ जाता है। Military man is like, how are you, ma'am? He'll always speak very respectfully. Crow has come. Hi, baby. This crow is so beautiful. Excuse me. See the crow. See the crow. See the crow. I'll show you military. Very beautiful. I told you birds also come. Dogs come. I saw one beautiful dog, but I wanted to click his snap. मैंने बोला जाने दो some other time. वो मस्जिद के एकदम सामने ही खड़ा था, तो I said वहाँ पे खड़े रह के क्लिक करना थोड़ा weird लगा. I just stood in front of the dog and I said, do you know how gorgeous and how beautiful you look? See, animals, don't think you look silly by talking to them. तुम्हारी जो भाषा आती है, हिंदी है, जो भी भाषा है, उस भाषा में तुम बर्ड्स के साथ बात करो, एनिमल्स के साथ बात करो. टुडे आई मेट पीहू. मैंने पीहू को किस किया ऑन हर फॉरहेड. I called her honey. Honey, just look here. And I kissed her and she was like, वो कुछ खा रही थी. वो लड्डू उसको खिला रहे थे ना लोग, ऐसे घास डालते हैं, टीका लगाते हैं और एक लड्डू खिलाते हैं. मेंटल कहीं के. डिड यू टच हर? डिड यू पेट हर नाइसली? अपना शनि ठीक करने के लिए, अपना वो शुक्र ठीक करने के लिए गाय को खिलाना. आई किस्ड हर ऑन अ फॉरहेड. आई डू दैट. Talk to animals in your language. Like now, I really spoke like this to that doggy. चल कल शाम को मुझे चर्च कंपाउंड में और दूसरा डॉगी मिला. See this crow को. Crow was sitting and staring and like ऐसे देख रहा था मेरे फेस को, क्योंकि काला पहना है ना मैंने, इसलिए. तो ही इज चेकिंग आउट द कलर. ये सिंह कहीं हमारी रिश्तेदार तो नहीं है ये ह्यूमन फॉर्म में. एंड लिटरली आई सेड दैट, डू यू नो हाउ गॉर्जियस यू आर, डू यू नो हाउ ब्यूटीफुल. इट वाज अ ब्यूटीफुल लुकिंग डॉग. आई कांट इवन एक्सप्लेन टू यू. उसका ना एक ऐसा काला था एक साइड में एंड दिस ईयर, एंड ही वाज फुल्ली वाइट. सो नेक्स्ट टाइम आई सी हिम प्रॉपर फोटोग्राफ लूँगी मैं. स्पीक टू पीपल. हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस. तुम इतने तरोताज़ा दिखने चाहिए कि मिलिट्री मैन, दैट मिलिट्री अंकल इज टेलिंग मी, हाउ आर यू मैम, हाउ इज़ योर डे. आई होप यू अंडरस्टैंड. यू शुड बी दिस. वो आंटी ने उससे मुँह से रहा ही नहीं गया, जो मेरे साथ मॉर्निंग में मुझे दिखती है ना. दे स्टे जस्ट ऑपोजिट द चर्च. शी सेड, या यू जस्ट टेक योर बैग एंड रन अवे. आई सेड, आई कैन नॉट हैंडल देयर सॉन्ग्स, आई कैन नॉट हैंडल देयर वॉइस. ही सेइंग, यू आर कमिंग फॉर गॉड और यू आर कमिंग. आई सेड, आई एम कमिंग फॉर गॉड. दैट इज़ द टाइम, दैट इज़ द रीज़न आई कम फॉर दैट शॉर्ट टाइम. आई सेड, आई डोंट वांट टू स्पॉइल माई मॉर्निंग. उसको रहा नहीं गया, सहा नहीं गया. शी हैड टू आस्क मी दैट क्वेश्चन. I think even she has 3 daughters. उसकी ना बड़ी लड़की इतनी खास नहीं लगती है, लेकिन वो दूसरी वाली इतनी अच्छी दिखती है, काफ़ी अच्छी दिखती है. मतलब फॉर हर एज, एंड शी हैड अ वेरी grown up daughter. And then I asked her, how come your daughter is looking pretty young? Because her daughter looks pretty, like, you know, big. She said no, she was married at the age of 22. So ऐसा होता है, जब इनको रिश्ते मिल जाते हैं ना, क्विकली शादी कर लेते हैं. तो जब क्विकली अगर वेल सेटल्ड है, गल्फ में है, फॉरेन कंट्री में है, शी लुक्स क्वाइट वेल टू डू. मतलब वो हस्बैंड काफ़ी वेल टू डू होगा कि इसकी शादी क्विकली की है उन लोग ने. अरेंज मैरिज सारी डॉटर्स की. एंड दे ऑल आर लिविंग नेक्स्ट टू द मैका ओनली. मतलब
उसी चर्च कम्युनिटी के, मतलब चर्च क्या, वहीं पे रहते हैं, आसपास ही रहते हैं इन लोग। उसकी सारे इमेजिन तुम्हारी बेटियां भी आसपास ही रहती है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में। Do you think you should be getting married at that age? I would personally say कि it is frightening to be married at the age of 22. बट एज आई सेड, तुम्हारे लाइफ गोल्स ही अगर शादी करके सेटल डाउन होना है और तुम्हें जॉब नहीं करनी है या तुम्हें एडवेंचर नहीं करना है, you're an introvert person और तुम्हें पता है कि इवेंचुअली मुझे यही करना है, सो 21-22 में शादी करना इज़ नथिंग बिग डील। आफ्टर 21 आई थिंक इट्स प्रिटी ऑब्वियस। कुछ फीमेल्स को नहीं मज़े मारने हैं, घूमना फिरना, ट्रेडिशनल फैमिली है, यू नो हाउ दी, सो देयर पेरेंट्स हैव बॉट देम ट्रेडिशनली, फिर इन्होंने सोचा यहाँ वहाँ टाइम पास करने के बदले शादी ही कर लेते। डॉटर वॉज अराउंड 17-18 ईयर्स ओल्ड, मे बी 20 ईयर्स ओल्ड। तो अगर 23 या 24 में भी अगर उसने प्रेग्नेंट होकर बच्चा पैदा किया है, शी मस्ट बी 44। I'm just giving an example. See this couple. यहाँ की रेगुलर क्राउड मुझे दिखाई नहीं देता है। वो कुछ लोग आते हैं, शायद ठंड के वजह से नहीं आते हैं या पता नहीं क्या वजह है। कपल ऑफ देम आई डोंट सी देम। कल मैंने, यू वोंट बिलीव, बिकॉज ये मंत्रा विच आई सेड ना, थैंक यू गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड, every single day, every single minute I am upgrading and up leveling myself. I'm attracting wealth, status, luxury, prosperity and abundance, and there is plenty of cash flow. You won't believe, you won't believe this. And कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी मैं बोलती हूँ, कभी नहीं बोलती हूँ, कभी मैं चलते चलते ही बोलती हूँ, क्योंकि दैट इज़ द राइट टाइम फॉर मी। सो मैं दिमाग नहीं लड़ाती हूँ कि मुझे एक जगह बैठ के ये मंत्रा रोबोटिक, it's not robotic affirmations, it's just I feel positive when I speak like this. You won't believe, yesterday when I went for that prayer meet, और मैं थाली लेके खड़ी थी, एंड मैंने थोड़ा पहले खा लिया। वो मेरे जो पहचान वाले थे ना, तो उनके इसमें से मैंने एक वो इडली, मैंने बोला यू डोंट माइंड ना, तो मैंने बोला लंबी लाइन है, पता नहीं मैं खाऊंगी कि नहीं, बिकॉज आई वॉज इन फास्टिंग। फिर उसने बोला नहीं खाना, मुझे पता है मैंगलोरियन खाना है, तो बहुत ही बढ़िया था, जो भी चिकन करी बढ़िया थी। वो बेसिकली मैंगलोरियंस का फेवरेट होता है वो काले चने विद टिंडे के साथ बना, वो नारियल के साथ बनाता है ना, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मैंगलोरियन डिशेस। फिर वो इडलीज नहीं बनाते, वो इडली टाइप सन्ना बोलते हैं, वो थोड़ा बड़ा मोटा और ऐसा होता है, अच्छा रहता है वो, सन्ना बोलते हैं उसको। वो था, और क्या था, पुलाव था, पीस पुलाव था, और वो मीठा जो था ना वो बहुत ही बढ़िया था, बिकॉज़ वो टिपिकल मैंगलोरियन डिश रहती है। सलाद भी काफ़ी अच्छा था। और क्या था, पनीर की सब्ज़ी थी, पनीर मटर, तो ये सारी चीज़ें थी। एंड देन ही सेड कि, मैंने बोला नहीं खाना मुझे पता है, इनका केटरिंग का अच्छा ही रहता है, फर्स्ट क्लास ही रहता है। एंड आई हैड सीन देम 3 months ago, मैं किसी और प्रेयर मीट के लिए गए, तो यहाँ पे जो भी फंक्शंस होते हैं ना, मैंगलोरियन का अगर रहता है तो ये इनके थ्रू ही, जनरली इनके थ्रू ही जाता है। सो व्हेन आई वाज हैविंग दैट ना, मैंने आई हैड 1 सन्ना, मतलब 1 इडली खाई, फैंटेस्टिक थी। देन आई सेड कि शांति चलो, मैंने बोला लेट मी गो लास्ट, क्योंकि बहुत मतलब क्राउड, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, मे बी 75 पीपल। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर के बाद जाती हूँ। प्लेट लेके खड़ी रही, एंड अंकल एंड आंटी वो जो केटरिंग के लोग हैं वो सर्व कर रहे थे।
तो जब उन्होंने मेरे प्लेट में डाला, कड़ी डाली, मैंने बोला नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, सो दे पोर्ड मोर। आई सेड नो आई डोंट वांट इट। मैं सामने से बोल रही आई डोंट वांट इट, लेकिन मेरा फेस देख के उन्होंने 2 बार डाला। फिर दूसरा कोई चीज़, अरे और चाहिए आपको, तो उन्होंने चिकन करी और कोई तो चीज़ उन्होंने 2 बार 3 बार डाली और अच्छे अच्छे पीसेस डाले चिकन के। सो व्हेन यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब तुम इतने प्रॉस्परस लगते हो या तुम इतने अबंडेंट लगते हो कि तुम्हें सामने से ये खाने की चीज़ इज एन एग्जाम्पल, वो सामने से ही मिल जाता है तुम्हें। सो तुम अपने आप को जब संपूर्ण बनाते हो, अबंडेंट बनाते हो, यू आर नॉट चेसिंग, यू आर नॉट बेगिंग, यू आर नॉट एक्टिंग बेचारा, सो सामने से तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलती है। अभी मुझे दिमाग में आ गया कि देखो ना मैं कितनी फूलिश हूँ, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मतलब मैंने ये सोचा ही नहीं जब मेरा एक्स मुझे ब्रैग कर रहा था अबाउट हिज डेजिग्नेशन। एंड दैट टू ही डिड नॉट, नहीं उसने मुझे हाँ उसके करंट डेजिग्नेशन के बारे में बताया था। दैट वाज जब उसको प्रमोशन मिला तो उसने मुझे कभी बताया जब व्हेन आई वेंट टू विजिट हिम, मतलब देव दर्शन जैसे करते ना, दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान के, मतलब अपने मुंह से उसने फूटा नहीं। इट्स ओनली व्हेन आई विजिटेड हिम एंड वो लोगों के सामने, मतलब वो दिखा रहा था देखो चिक आ गई है मुझे मिलने के लिए, तो उनके सामने मतलब बाहर खड़े रह के वो मुझसे बातें कर रहा था एंड मैंने स्पॉन्टेनियसली उसको हक किया क्योंकि वो प्रमोशन हो गया था उसका। ही वॉज ऑलरेडी ऑन द प्रमोटेड लैंड, बट उसको हाईएस्ट लेवल का प्रमोट। तो ना रियलाइज कि यार ये अगर ये वाला डेजिग्नेशन हैंडल कर रहा है तो उसका दिमाग कितना चढ़ा हुआ होगा। ये मैंने नहीं रियलाइज़ किया क्योंकि आई वाज दिस चाइल्डिश, ओपन माइंडेड, चाइल्ड लाइक पर्सन ना, इनोसेंट। मुझे नहीं समझ में आया कि अगर उसको ये वाला डेजिग्नेशन मिलता है फिर तो ये तो अपने आप को भगवान समझेगा। सीरियसली, क्योंकि वो जो एटीट्यूड में वो चेंजेस थे, वो एटीट्यूड में चेंजेस ऑलरेडी आ चुके थे, बट वो डेजिग्नेशन मिलने के बाद उसको तो दुनिया दिखाई नहीं दी। सीरियसली उसको हर कोई मतलब छोटा ही लगने लगा। पहले से वो ऐसे ही सोचता था, बट देन आई डिडंट रियलाइज। मैंने उसको हग किया, आई वाज सो हैप्पी फॉर यू, देन ही इज लाइक वील सेलिब्रेट दिस। फिर मुझे याद आया आई एम सच एन इडियट। व्हाई? बिकॉज इसने मुझे अपने से नहीं बताया, उसने मुझे तब बताया जब व्हेन आई वेंट एंड विजिटेड हिम। मतलब ये चीज़ मुझे पता ही नहीं चलती, या अगर मुझे बताता तो भी ऐसे बताता जैसे इवेंचुअली बताता मुझे। और उसकी शिफ्टिंग की बात मुझे 2 महीने पहले पता तो चली वाया। मैं एज ए सेड ना कम्युनिटी प्रेस में गई थी, तो मुझे एक लड़की ने बताया था, बिकॉज ऑल दीज पॉपुलर दिस ना, तो लेकिन उसने मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी भाई। रॉन्ग मतलब उसको भी नहीं पता होगा प्रॉपर्ली, तो उसने बोला तो उसका भाई का नाम है। मैंने बोला वो क्यों शिफ्ट होगा, ही इज़ ऑलरेडी इन अ 2 bedroom अपार्टमेंट है ना, अच्छे खासे सोसाइटी में। They used to stay in the same building, मतलब same। इसके मुँह से फूटा नहीं, literally। And then he tells me that also on that very moment, that very day। I'm like, मैं just देखती रह गई। I was stunned।
आई वॉज सिंसियरली स्टंट, तब मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें नहीं चल रही थी. सो डोंट थिंक दैट इफ़ यू आर हैविंग एन अफेयर तुम सब चीज़ तुम्हें पता चलती है या तुम्हें सब चीज़ बताते हैं और समथिंग. या आई एम गिविंग अ लाइव एग्जाम्पल. लाइव 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 एग्जाम्पल. एक महीने पहले पता चली थी. एंड देन आई स्टैंड देयर एंड लुक एट हिज फेस लाइक दिस, लाइक अ फूल, लाइक अ स्टूपिड पर्सन. मतलब पूरी दुनिया को पता है, मुझे ही नहीं पता है. अगर तुम इतनी तुम्हारी ज़िंदगी के लाइफ चेंजिंग चीज़ें तुम मुझसे छुपाते हो. और मैं अपना प्यार का ढिंडोरा ले पे अपने दुनिया में अपने नशे में हूँ. सो वुमेन जस्ट भी अपने दिमाग को थोड़ा सा अक्ल से वापरो. बापरे, अभी मैं सोच के भी ऐसे मैं दंग रह जाती हूँ कि मैं कितनी स्टूपिड हो सकती हूँ. मैं इतनी मतलब मेरे होश उड़ जाते हैं कि मैं ये सोच के कि अभी ये तो भगवान हो गया है. ये तो अभी ये ऐसे ही नखरे करेगा, ये ऐसे ही हरामी हरकतें करेगा. So don't go for a guy who is so self-obsessed with himself. Don't do this, ladies. I am requesting you. तुम सोच भी नहीं पाओगे कि कैसा वो फीलिंग रहता है. तुम उसके साथ होकर भी तुम कहीं उसके पास भी नहीं हो और कोई तुम्हें खैरात में रख रहा है तो फिर forget it. उसने अच्छा खासा रिवेंज लिया मेरे से, सच्ची मैं बोल सकती हूँ. बोलना तो नहीं चाहिए था, मैंने उसके ऊपर लाफा चढ़ाया था ना. आई डिड नॉट रियलाइज दैट इन माई हेड कि अभी ये इस लेवल पे है तो ये अभी किस तरह का मेरे साथ. सो गाइज आई एम टेलिंग लेडीज़ रियली, तुम ना थोड़ा होश में रहो. ऐसा नहीं कि प्यार 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 करके उसके अंदर घुस जाओ और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है. बिकॉज इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल. एंड स्पेशली ये जो कैटेगरी, ये जो लोग हैं ना, थोड़े काफ़ी पॉपुलर है. बट आई एम नॉट कीपिंग अ ट्रैक ना. मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहाँ घास डालने जाती हूँ या मैं कहाँ केयर करती हूँ. I'm giving live example. Live.
इसलिए जब तुम लोग विश फुलफिलमेंट के पीछे भागते हो या तुम बार बार एक ही चीज़ दोहराते हो कि मुझे यही पर्सन चाहिए, यही पर्सन चाहिए, मैनिफेस्टेशन कोच के पीछे भागते हो। नाउ देयर इज़ दिस सरदार गाय कॉल्ड रशप्रीत सिंह मोटिवेशन। ये सारे लोग एक एक जैसे, ये उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट रहता होगा, लेकिन वो ही चीज़ रिपीट करते हैं। वास्तु मेरिकल्स करके ये फीमेल है, अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडर, सब इनको सब नॉलेज रहता है, मैनिफेस्टेशन। फिर इसका पति सीए है, इसको पैसे की क्या कमी है, फिर भी भिखमंगीगिरी करेगी। मैंने ये मैनिफेस्ट किया और वो काम तुरंत हो गया, मुझे वेंडर से डिस्काउंट चाहिए तो वो तुरंत हो गया। ब्रेसलेट्स बेचती रहती है। दे ऑल से द सेम थिंग एवरी सिंगल डे। इफ़ यू आर मेकिंग अ वीडियो, कहाँ तुम्हें कहीं ना कहीं से तो वो चाहिए ना, माल मसाला। देन दिल से ओ मैजिक, द सेक्स मैजिक, सेक्स तंत्रा की तुम्हारी विश फुलफिलमेंट सेक्स के थ्रू होती है। सेक्स इज़ अ वेरी पावरफुल एक्टिविटी, क्योंकि देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, राइट। सेक्स क्यों होता है? बिकॉज इट्स क्रिएटेड फॉर रिप्रोडक्शन। प्लेजर इज़ सेकेंडरी, प्राइमरी इज़ रिप्रोडक्शन। तो इसके लिए इस तरह के एक्टिविटीज़ करने के लिए इस तरह के इमोशंस भी ये होते हैं ना। इट्स सनलाइट ना, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ तुम लोगों को कि वो वही चीज़ें रिपीट करते हैं। रोबोटिक अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, द वाटर टेक्निक, पिलो टेक्निक। तो डोंट बी सो क्रेजी अबाउट इट। फिर इनके वर्कशॉप होते हैं, सुबह सुबह इनका वो होता है 99 रुपीज़ के लिए, सुबह उठ के एफर्मेशन करना इनके साथ में लाइव, मेडिटेशन करना। पागल जैसे मेडिटेशंस भी नहीं करने चाहिए। इट डजंट वर्क वेल, इट डजंट गो प्रॉपर, नहीं होता है वो। मैंने तुलसी के फॉर माई हर्बल टी, टुडे आई एम जस्ट हैविंग हर्बल टी एंड वन दिस। जब तुम फास्टिंग करते हो ना, तुम्हें इतना खाना खाने को होता ही नहीं है, चेप के खा ही नहीं सकते हो तुम, खा ही नहीं सकते, क्योंकि आदत नहीं होती ना। क्योंकि आई एम ईटिंग राइस आफ्टर 1 वीक। व्हेन डिड आई हैव लास्ट? व्हेन आई वेंट टू 5 स्पाइस थर्सडे। फिर थोड़ा बचा हुआ राइस मैंने सैटरडे को खा लिया था। तो ऑलमोस्ट आफ्टर 1 वीक आई एम हैविंग राइस। और पिछले 3-4 दिन से लाइट फूड, सूखा ब्रेकफास्ट खा रही हूँ। तो मुझे आदत नहीं है सडनली टू जस्ट सिट डाउन एंड ईट सो मच इन क्वान्टिटी। मैं छोटे छोटे फ्लावर्स 1-2 ऐसे प्लक करती हूँ। इफ़ यूर अ प्लेजेंट फेस, अगर तुम चिड़चिड़े रहोगे, तुम्हें अपने एनिमीज़ का से भी ऊंचा सोचना है। वो एनिमीज़ तुम्हें ट्रिगर करते रहेंगे, सो तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू पुट देम इन प्लेस। मैंने बहुत कुछ फेस किया लाइफ में। अगर ये है कि इट इज़ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, मैं इतनी तपस्या करती हूँ। मैंने बोला माइंडलेस मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। आई नेवर डू दिस माइंडलेसली। पहले करती थी, अभी नाउ आई डोंट डू दिस माइंडलेस मेडिटेशन। मेरे घर में जो ये है ना, डिड आई सेड आई गॉट द तुलसी प्लांट, आई गॉट येस्टरडे। रात को मैंने लिया, ख़रीदा अराउंड 9:30। तो वो जो है ना, माइंडलेस मेडिटेशन की बात करी थी ना। तपस्या का मतलब है यू आर सो ट्रस्टिंग गॉड। सी व्हेन आई सी पीपल फॉलिंग सिक, ये एक स्ट्रेस होता है हमारे बॉडी पे, और एंड इट कम्स इन फॉर्म ऑफ इलनेस। क्योंकि आई वॉज गोइंग थ्रू दिस। मैं अपने ही घर में मरी पड़ी रहती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई यूज्ड टू बी सो इल इन माई हाउस। मतलब आई वॉज देयर बट आई वॉज डेड। क्योंकि मैं बोलती थी, मैं भगवान मैं और कितना हैंडल करूँ, मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे नहीं होता है ये।
that's how. ओ दैट्स कनाकिया. मुझे पता चला कि कनाकिया में ऐसी एक वसोवा वाला एक बंदा है जो मतलब ऐसे बॉलीवुड जैसे दिखता है. तो मुझे पता चला जावेद, वो जो ब्यूटी शॉप फेलो है ना, ही टोल्ड मी दैट वो एक्टर है ना, वो फिल्मों में वगैरह आता है. मैंने बोला ये जो मुझे ऐसा दिखता है ना, मैंने बोला ये टीवी सीरीज़ या फिल्मों का बंदा है. सिंह हाँ यू आर राइट. सी ना व्हेन आई लुक एट पीपल ना, आई कैन एक इंट्यूशन आता है. मैंने बोला ये यहाँ का क्राउड नहीं है. मैंने बोला यहाँ पे मिडिल ऐसा क्राउड है. इट्स अ वेरी डिफरेंट. जो जब तुम वसोवा जाते हो, लोखंड वाला जाते हो, फोर बंगलोज जाते हो, वहाँ पे DN नगर वो साइड में जाते हो ना, तो यू विल फाइंड पीपल वेरी फिल्मी, वेरी वेरी फिल्मी. आजकल ओशीवारा में भी काफ़ी सारे ऐसा क्राउड आ चुका है. बट आई एम जस्ट सेइंग टिपिकल फिल्मी क्राउड. बट एज आई सेड ना, लाइफ क्या है ना कि जो तुम्हारे हिस्से का है, तुम्हारे हिस्से का तुम्हें भुगतना पड़ता है. बोलते ना हाथ को आया मुंह को आया, मुंह तक नहीं गया क्या, मतलब हाथ. आई कैंट अंडरस्टैंड दैट. कैसे मैं बोलूँ, मतलब यू गॉट इट बट यू कुड नॉट ईट इट, वैसे टाइप मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है. बट ये मेरी मिस्टेक है यार. मुझे ये मैं अपने एक्स के बारे में जब सोचती हूँ ना, कि आई शुडंट हैव बीन कैरिड अवे विद हिज फॉल्स और फेक पर्सोना. आई शुडंट. इट्स नॉट दैट कि मैं उसको नहीं जानती हूँ, मैं उसको जानती हूँ. बट आई वॉज मतलब वो फ़ैन गर्ल टाइप ना. आई वॉज लाइक सो मच फ़ैन गर्ल भी नहीं बोल सकती, फ़ैन गर्ल पता नहीं. आई वॉज सो, मे बी बिकॉज ही वॉज मेकिंग हिमसेल्फ सो अनअवेलेबल, or maybe he's so emotionally like he's there and he's not there. So I'm trying to figure it out how to, whether I'm hallucinating, I'm in delusion, या ये एक illusion है, because he's there and he's not there, he's there and he's not there. इसलिए उसको उठ के वो मुझे बोलने के लिए कि देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन अस, उसको एक सेकेंड नहीं लगा. एंड ये मैंने समझा नहीं कि मैं तुम्हारी स्टेटस की नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सब नहीं है जो तुम्हारे पास है. एंड ना मंद मंदी सी ब्यूटिफुल सी ब्रीज आ रही है. इट्स अराउंड 24 degrees. It's getting a little warmer. I can't say hot, but it's little warmer. So the vibe is little different. And आज मैं different लग रही हूँ because of the hair color and because of my fasting also. When you are doing semi fasting, I can't call it full fasting क्योंकि मैं snacks खा रही थी, कुरमुरा चुरमुरा जो भी है. बट मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाए. That building which I can see, if I can see any building on that high rise, because it's on a hill. This is on the hill in Bhavani Nagar, on the hill. So इसलिए ये high rise दिखाई देता है.
देन ही सेड वो कनाकिया में रहता है, दैट एक्टर। वो सलमान के साथ विलन विलन भी आया था। सिंस आई डोंट वॉच मूवीज़, मुझे नहीं समझ में आता है ना। उससे प्यार करो जो तुमसे प्यार करता है, नॉट जस्ट बाय वर्ड्स बट बाय देयर एक्शंस, बाय देयर इंटेंशंस, बाय देयर थॉट्स। ऐसे मुंह खोल के ओ आई लव यू ये कोई भी बोल सकता है। अब ये लेवल पे ये डेजिग्नेशन के लोग भी गेम खेलते हैं, आई लव यू बोल देते हैं। क्या उनको लड़कियों की कमी होती है? नहीं, बट उनके लिए जस्ट अ माइंड गेम। ये भी एक मेरी फ़ैन है, ये भी आएगी। अच्छा ये ठीक है, ये है या नहीं है डजेंट मैटर। ये जो लोग कूल दिखाते हैं ना, ये कूल नहीं रहते, ये बिल्कुल भी कूल नहीं रहते। अनबॉदर्ड, इनसेंसिटिव, ये सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं। इनको सबसे ज़्यादा पैरानोया रहता है, सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है। भाई आज मेरी सीट है, कल नहीं रहेगी। हर बार पॉलिटिक्स खेलना है, हर बार सिर्फ अपनी सत्ता संभालनी है। हियर टुडे गॉन टुमारो। 24 घंटे पैरानोया, कौन हु इज़ प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, हाउ डू आई मैनेज, हाउ डू आई डू इट। There's not a moment of peace in these people. They're always anxious, always restless, always reckless. इसलिए ना जब मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचा, आई एम लाइक मैं क्या मांग के मैं क्या मांगा। मैंने भी ऐसी चीज़ें मांगी होंगी कि नहीं मुझे यही चाहिए। क्यों चाहिए भाई? और ये जब ये लोगों that's what I'm trying to say is that we need to be a little more cautious. What are we asking for? It's a little dirty. So don't be so stupid saying I need only this, I need to marry this. Okay, now I'll talk about this. You know why I wanted to do some Bollywood reviews, because I wanted to show those characters how flawed they are. Okay, and there's nothing to be excited about it. Oh, इसका performance कितना अच्छा है. But yes, it is a psychologically damaged characters. Are you crazy? So stop running behind these people and putting them on the pedestal. I don't care whatever their performance is. It really irritates me like anything. I really wish I could really take some clips and movie clips for scenes, and I can actually explain how things works. मुझे हर कोई फ्लैट एक जैसा क्यों लग रहा है? हर कोई बिल्डिंग You should have this in herbal teas. It's pretty good for your cold and cough and whatever winter kind of stuff is there now. It's pretty good. Would I like to stay with like 500 flats in a building where there are like 300, 400? See, मेरा जो है ना A wing, B wing, only 80 flats are there.
I like this because it's sun out here. And another thing, मुझे लोग why do you think I'm on a higher vibration? Because I sit in the sun for 1 or 2 hours. मतलब not directly, जो भी धूप मेरे घर में आती है from my window in my bedroom, मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ. That's the reason why there is so much of tej in me. There's so much of positivity, and that aura has been very strong. It's because of the sunlight. मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं काली पड़ जाऊँगी या मुझे झुर्रियाँ आ जाएंगी या काले धब्बे पड़ जाएंगे. इनफैक्ट माई फेस इज शाइनिंग बिकॉज ऑफ द सनलाइट. कैन यू सी दिस? See this. In the sunlight. See, this is the road which goes to that Andheri Kurla Road, if they were to take it straight, but I don't know whether there is an access to it. See, it's practically easy. मैं बोल रही हूँ ना, this चांदीवली का रास्ता goes to Chandivli and Powai. But if they were to make another road from the end from Bamandayapara, it is directly into Powai. But they, as I said, there are many things. I find these crows amazingly beautiful. See, my skin is looking so beautiful. I would not recommend whatever I am doing that other people should be doing it. It's what works for me. It works for me because I have faith कि ये सनलाइट मुझे और ब्यूटीफुल बना रहा है. मेरा ऑरा और भी ब्यूटीफुल बन रहा है. मेरे बॉडी में इतनी सारी विटामिन डी वो दूसरी बात है, बट मेरी पूरी शक्तियाँ वापस आ गई है. आई होप यू अंडरस्टैंड. गॉट इट? That Turkey couple has come. I think they are having an extra marital affair. ऐसा लग रहा है that other female is meeting her lover in this park. It's an extra marital affair. सिर्फ यहाँ पे तुम्हें कोई जल्दी से पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो ठरकीपना जो होता है ना, वही करते हैं जो सेक्स छुप छुप के करते हैं या उनको. क्योंकि इफ़ यू आर अ रियल कपल यू विल नॉट कम एंड बी सो ठरकी एंड डेस्परेट. ये तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, जहाँ जहाँ पे तुम मिलते हो वहाँ पे हाथ मारना है, वैसे टाइप ऑफ कपल. कूड़ा कचरा, हम वी इंडियंस जस्ट लव दिस कूड़ा कचरा का कल्चर. इतना कूड़ा कचरा है यहाँ पे. यहाँ पे एक ब्रिज बन रही है. दिस इज़ द रीसेंट दिस. हाँ, पहले पूरा ऐसे कुछ भी तो भी था यहाँ पर. इट्स ऑल रिक्लेम्ड लैंड ना. I'll ask this person. भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? रोड कहाँ पर? वो इंडस्ट्रियल एस्टेट है वहाँ पर. फिर वहाँ से बाहर निकल सकते हैं रोड पे? अच्छा, बट वहाँ से एंट्री है, वॉचमैन है वहाँ पर, ऐसे जा सकते हैं ना? अच्छा, थैंक यू. Now you heard it. इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाता है, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गो आउट टू द मरोल दिस मेन मरोल नाका रोड. दैट इज़ मेन मरोल ना, जो यहाँ से आगे है गाउठन एरिया. दैट इज़ नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल ना, वो ओल्ड अंकल है ना, 91 ईयर ओल्ड,
whenever I'll try to take his photo. And he's like a sparrow. Imagine 91-year-old होने के बावजूद भी वो आते हैं. चलो कुछ भी सिली चीज़ के लिए भी आते हैं, जनगण मन जो भी है, कुछ भी है, वो आते हैं. दैट वी हैव टू अप्रिशिएट दैट. 91 years old ऐसे स्पैरो की तरह, ही इज़ लाइक अ स्टिक. वो आते हैं, बातें करते हैं. ही रिमेंबर्स. उनको ये भी याद है कि 2 दिन से उन्होंने मेरा फेस नहीं देखा है करके. वो वहाँ पे वो करते हैं एक्सरसाइज, फिर यहाँ पे एक्सरसाइज एरिया में आ जाते हैं विद दैट टी शर्ट, पॉन्ड पार्क वाला टी शर्ट. वो डबल पहनते हैं बिकॉज कोल्ड होता है ना उनको. सो इफ़ दैट मैन क्या, ये विल पावर है. इफ़ मुझे कोई बोलते हैं खाने पीने की चीज़, मतलब खाने पीने की चीज़ में विल पावर. अब तुम मेरा एग्जाम्पल ले लो. मैं प्राइम लोकेशन में रहती हूँ, मुझे क्या किस चीज़ की कमी हो सकती है. इन अ वे बहुत सारी चीज़, ऐसे खाने पीने की चीज़ की बात ही नहीं है ये. इट्स हाउ यू मेंटली सपोर्ट योर सेल्फ एंड हाउ यू कीप योर सेल्फ मेंटली. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नथिंग एल्स. सी माई लुक, कैन यू सी माई लुक. शेड में आती हूँ. ये देख कूड़ा कचरा से मैं कोने में रखा हुआ. नाइस ना. चलो आई विल जस्ट वाइंड अप एंड मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ, मेरी हर्बल टी. एंड थ्रू आउट द डे इफ़ आई कैन, आई वॉन्ट टू गो गेट इन टू एडिटिंग. वंस थिंग्स आर एडिटेड मेरे लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा. फर्स्ट आई नीड टू गेट दिस सॉर्टेड आउट कि अपलोड होते हुए रिवर्स क्यों हो रहा है. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, आई जस्ट वाइंड अप राइट नाउ. Seven minutes, almost 1 hour. Okay dears, but I think my content is getting better and better ना. तुम लोग को अच्छा लग रहा है ना. So I'm walking down this road. ये साल कैसा रहा ओए रब्बा, मेरी बदन गई चाह. क्लासिक चाय पीती हूँ मैं. एंड ओ हो व्हाट डिड आई डू. आंवला खाना भूल ही गई मैं. Okay then, take care of yourselves. Bye. See you.